Can you see the screen? जी। Okay. So let's start question number 1. Showing all necessary working, solve the equation 3 modulus 2 raised to power x minus 1 equals 2 raised to power x, giving your answer correct to 3 significant figures. First of all, write your question. 3 2 raised to the power x minus 1 equals 2 raised to the power x. Now let y equals 2 raised to the power x. आपने 2 रेज टू द पावर x को y कर देना है सबसे पहले, तो आपका जो मॉडुलस होएगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्मेट, दैट इज y minus 1 modulus close and equals y, because I let 2 raised to power x equals y. Now I need to solve the modulus function. So squaring on both sides, I will take square on both sides. So 3 becomes 9 and y minus 1 becomes simple bracket. So you can simply say it's y minus 1 and whole square equals y square. Now I am going to expand this identity. So this is 9 to y square. This is y square minus 2y plus 1 equals y square. So expand the bracket. So it will be 9y square minus 9 times 2 18y plus 9 equals y square. So 9 square on the left hand side, this is 9y square minus y square minus 18y plus 9 equal 0. So 9 minus 1 is 8y square minus 18y plus 9 equals 0. So now 8 nines are 6. You can use your calculator or do the mid-term breaking. Alina Farouk, आप calculator use कर लो, so get the value for this thing. 8y square minus 18y plus 9. Yeah, think 8 nines are 72. Can you think are the factors? डेसिमल में आया। What is the value for y? Yes, give me. The y is 0.75। okay. Y is 0.75 और दो values होंगी या y equals 1.5। ग्रेट, शाबाश। तो दिस इज़ 1.5। तो हमने क्या किया, वो y को तो लेट किया था, y तो एक्चुअल 2 रेज टू द पावर x था, वी नो। यहाँ पर आपने लिख देना बेशक 2 रेज टू पावर x इक्वल्स y। तो y की जगह पे आपने सब्सटीट्यूट कर देना है वापस वही चीज़, 2 रेज टू द पावर x इक्वल्स 0.75 एंड सेकेंड वैल्यू इज़ y की जगह पे यहाँ पर भी आपने e रेज टू द पावर, सॉरी टू नॉट e, इट्स 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1.5। सो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दोनों साइडों पे ln लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ln 2 रेज टू द पावर x इक्वल्स ln 0.75।
So according to the log property, bring this x to the coefficient place. So it is x ln2 equals ln 0.75. So x equals ln 0.75 divided by ln2. So get the answer for x from this side and from there as well. So ln2 raised to the power x equals 1.5 ln 1.5. So x will be equal to ln 1.5 divided by ln2. To get the values for x, what is the value for x from this expression and value for x for that expression? So x equals ln 0.75 divided by ln2. Alina beta, get the calculation. Minus 0.415. Minus 0.415 एक वैल्यू ये होगी एंड सेकेंड फॉर दिस वैल्यू ln 1.5 डिवाइडेड बाई ln2 0.58. 0.585. So this is your answer for question number 1. Show all the necessary working. Solve the equation giving your answers correct to 3 significant figures. तो 3 significant figure तक आपने इसका आंसर देना है. तो हमने यहाँ पर we are done with this section. Now comes the second question, that is trigonometry. Showing all necessary working, solve the equation cot theta plus cot into theta plus 45 equals 2, and your range lies 0 till 180 degree. So this is cot theta plus cot into theta plus 45 degree equals 2. Now you know cot theta can be written as 1 over tan theta. So cot theta 1 over tan theta plus cot theta can be written as 1 over tan theta. तो इस सेक्शन से भी you can write your 1 over tan into theta plus 45 degree equals 2. So 1 over tan theta as it is, this is your 1 over tan theta plus 1 over tan a plus b. आपको आइडेंटिटी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी 1 minus a tan a plus b. तो here the tan a plus b equals, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है मिनाइल एहसन बेटा? tan a plus b याद है? अलीना? जी सर, tan A plus tan B over 1 minus tan A tan B. सोच लो, वेट. आपने कहा 1, स्टार्ट में क्या लिखना है? दिस इज एक्चुअली 1 माइनस tan A tan B. तो आपके पास ये हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस tan A tan B. This is actually the formula. You need to revise this. Tan A over tan B divided by tan A plus tan B. 1 minus tan A tan B. You can write simply tan A, because this is reciprocal. Over here I want to deal these things. 1 over, it is actually it will jump to the other side. So you can simply write 1 minus tan 45. It is tan A plus tan B. So you can write it is 1 minus tan theta. It is tan theta mean tan 45. It is tan 45 degree, and tan theta simply, this is your tan theta
divided by, it will jump, this is your tan A plus tan B, so it is actually tan theta प्लस ओवर के नीचे डबल ओवर लिखने की बजाय जस्ट मैं फ्लिप कर रहा हूँ फार्मूले को, तो इट विल बिकम tan थीटा tan 45 एंड इट विल बी इक्वल टू 2. द मेन इक्वेशन इज इक्वल टू 2. तो कॉट एक्चुअली 1/tan होता है, तो रिवर्स है, तो आइडेंटिटी आपके पास tan A tan B ये नीचे होता है. असल फार्मूले में ये चीज़ नीचे होती है और जो नीचे वाली चीज़ होती है वो आपके पास ऊपर होती है. तो tan A प्लस tan B ओवर, मिनाहिल बिल्कुल सही बता रहे थे आप. तो tan A एक्चुअली हम tan तो नहीं लिख रहे हैं, हम तो 1/tan लिख रहे हैं. तो ये एक्चुअली मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था. 1/tan A जो है ना ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास. जो नीचे tan A प्लस जो है ना tan B होता है, अगर ये सिंपल tan A B होता तो नीचे वाला न्यूमिरेटर ऊपर जाना था, ऊपर वाला नीचे आना था. तो इसलिए ये tan की वजह 1/tan की वजह से आइडेंटिटी फ्लिप कर चुकी है. तो 1/tan थीटा आपके पास यहाँ पर आएगा. तो जस्ट राइट एज इट इज, दिस इज योर 1/tan थीटा प्लस 1 माइनस tan 45. tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? tan 45 1 होता है. आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो. tan 45 अगर 1 है तो आपके न्यूमिरेटर में 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस tan 45. तो वो आपके पास जो है ना बेटा जी 1 है tan 45, तो इसके नीचे 1 प्लस tan थीटा बन जाएगा. 1/tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा. ये tan की आइडेंटिटी आपके पास जो है ना आ चुकी है. एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू 2. यहाँ पर आपका सब कुछ 2 के इक्वल हो जाएगा. तो लुक 1/tan थीटा. अब आपको क्या करना है? अब आपने इसका एलसीएम लेना है. अब आप इसका एलसीएम ले लो इस साइड का. तो अब आप जब यहाँ पर आप इसका एलसीएम लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा इंटू जो है ना बेटा 1 प्लस tan थीटा. तो tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉप पे आपके पास बेटा जी क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan थीटा और प्लस ये tan थीटा उससे मल्टीप्लाई कर जाएगा. तो दिस विल बी लाइक tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू 2. आप जस्ट ऊपर ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दो तो ये आपके पास बेटा जी बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1, दैट इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan थीटा विद tan थीटा. इट विल गिव यू tan स्क्वायर थीटा. तो बॉटम में आपके पास क्या बन जाएगा? आपने डिनोमिनेटर में tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो इट विल बी इक्वल टू बेटा जी tan थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा. तो इट विल बी tan स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 2. नाउ फाइनली आप इसको बेटा जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 1 प्लस tan थीटा. 1 प्लस एक्चुअली यू कैन से कि इट इज़ 2 tan थीटा. इट इज़ 1 प्लस tan थीटा दिस थिंग. इसको सिंप्लीफाई कर लो आप तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, इट इज़ 1 प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा. इट विल बी 2 tan थीटा. किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा मुझे आप रोक सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको पहले वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा. तो मैं जो कर रहा हूँ, किसी को बच्चे को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन या प्रॉब्लम. तो tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा हुआ माइनस tan स्क्वायर थीटा. हानिया बेटा आपको समझ आ रही है? तो नीचे हमारे पास जी सर. tan थीटा. अब इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब डिनोमिनेटर ख़त्म कर देंगे तो राइट साइड पे बेटा ये 2 कैन बी मल्टीप्लाइड विद tan थीटा. तो दिस इज़ योर 2 tan थीटा एंड प्लस जो है ना इट विल बिकम 2 tan स्क्वायर थीटा. तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन. इक्वेशन एक बनने जा रही है. तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास जो बन जाएगी ये 2 tan स्क्वायर थीटा, इधर tan स्क्वायर थीटा है
to bring this tan square theta to the right hand side. तो 2 tan square theta और -1 tan square theta उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो it will give you 3 tan square theta. This is 3 tan square theta. Just a minute. ये लुक, अब ये इक्वेशन 3 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगी लेफ्ट साइड के ऊपर. 3 tan स्क्वायर थीटा और 2 tan थीटा, ये 2 tan थीटा. These 2 tan theta will cancel each other. Look, this 2 tan theta and this 2 tan theta. When this goes to the right hand side, it will be cancelled out. So it will be equal to only 1. 3 tan square theta is equal to 1 now. So your tan theta is actually, if you say that your tan square theta equals 1 over 3. Now take under root on both sides. So you can take your under root on both sides. So tan square theta is equal to under root 1 over 3. So tan theta, only tan theta will be equal to plus minus under root of 3. तो you can get your theta. तो tan theta एक दफ़ा आप इसको बेटा कर दोगे प्लस अंडर रूट 3 से, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3. एंड सेकेंड जो कंडीशन आपके पास बनेगी, दैट वुड बी tan थीटा इक्वल्स नेगेटिव अंडर रूट 3. तो यू कैन गेट योर अल्फा, you can get your alpha. तो alpha tan inverse into, ignore the negative sign, you can take your under root 3. Just use your calculator and get the answer. Tan inverse under root 3. So alpha. Sir, tan inverse under root 1 by 3 नहीं? Oh yes, it is 1 by 3. किसने क्यों नहीं रोका? This is 1 by 3. So this is 1 by 3. This is 1 by 3. किसने रोका है? हानिया ने? अलीना फरूक सर मैंने, मिनाहिल. अच्छा, मिनाहिल ने रोका है. मिनाहिल बेटा, बाकी सारे जो है ना बेटा, देखो क्या है, चुप करके बैठे हो. ये 1 by 3 था, तो मैं उसको 3 अंडर रूट लिख रहा था, तो आपको मुझे रोकना चाहिए. मुझे लगा वो अंडर रूट में छुप गया. अंडर रूट में नहीं छुपा होता. जो ये उधर जाके 1 over 3 हुआ है, तो अंडर रूट में नहीं छुप सकता, तो ये 1 over 3 ही रहेगा. तो यू कैन ग्रैब योर कैलकुलेटर नाउ, गेट द कैलकुलेशन. तो थीटा बेटा यहाँ पर बताओ, अल्फ़ा आपके पास क्या निकलेगा? अंडर रूट 3, तो ये तो 30 होता है, तो आपके पास जो अल्फ़ा निकल रहा है वो तो 30 डिग्री ही निकल रहा है. तो इधर से भी आपको 30 डिग्री मिल जाना है, और यहाँ से भी अल्फ़ा जो है ना बेटा जी 30 डिग्री ही मिलेगा यहाँ पर. तो दिस इज़ 30 डिग्री, दैट इज़ आल्सो योर 30 डिग्री. अब tan की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो हमारी रेंज कितनी थी? वापस चलो, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर रेंज 0 से लेकर 180 डिग्री तक थी. द रेंज वाज फ्रॉम 0 टिल 180 डिग्री. तो अब हम जो है ना अपना कार्टेशियन सिस्टम देखेंगे, जिसमें ऐड शुगर टू कॉफ़ी होता है. हमारे पास ये हमारा एंगल सिस्टम है. दिस इज़ योर ऐड शुगर टू कॉफ़ी. tan जब नेगेटिव होता है तो tan नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है. tan पॉजिटिव तो फर्स्ट में भी होता है हमारे पास. तो पहला एंगल तो हमें यहाँ से मिल जाएगा. तो पहला तो एंगल होएगा, दैट वुड बी 30 डिग्री. जो दूसरा एंगल होगा, ये 30 डिग्री हमारा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, हमारा tan पॉजिटिव तो इसके अंदर है. तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव होता है tan थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो ये बेसिक एंगल 30 डिग्री है. यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होगा? 180 माइनस 30 डिग्री, तो इट विल बी 150 डिग्री. तो हमारे बेटा जी ये दो एंगल्स होंगे थीटा के. तो थीटा इज़ 30 डिग्री एंड थीटा इज़ 150 डिग्री. इसको बेटा समझने की कोशिश करें कि ट्रिग्नोमेट्री जब P3 में आ जाती है तो वो कितना आपको तंग कर सकती है. तो ये वाला जो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो रही थी वो 1 over tan की जो है ना मैंने लिख दी. एक्चुअली ये काम इस तरह से होता है. आपकी जो कंपाउंड एंगल आइडेंटिटी, हमने साइन ए बी वाली भी पढ़ी हुई है और कॉस की भी पढ़ी हुई है, तो tan भी उनके साथ होती है. तीसरी आइडेंटिटी आपकी लाइक tan A प्लस tan B, तो वो आपके पास
tan A प्लस tan B होता है, और ओवर जो है ना आपके पास आ जाता होता है लाइक दिस। आप सिंपल कंपाउंड आइडेंटिटी को अपनी याद रख सकते हैं, ये डाटा बुकलेट में सारी होती हैं, तो इसलिए इनसे परेशान नहीं होना। tan A प्लस tan B इज इक्वल टू, मिनाहल कैसे खुलेगी बेटा जी ये, tan A जस्ट ब्रैकेट की तरह इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो tan A प्लस जो है ना बेटा जी ये tan B होगा, डिवाइडेड बाई जो है ना 1 माइनस जो है ना आपके पास बेटा जी क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan A और tan B। तो क्योंकि यहाँ पर कॉट था, कॉट जो होता है वो 1/tan होता है, तो कॉट थीटा प्लस 45 था, तो कॉट 1/tan था, तो tan A प्लस बी इक्वल्स tan A प्लस tan B ओवर 1 माइनस tan A tan B होता है। तो जस्ट आप इसको फ्लिप करोगे ना तो आइडेंटिटी फ्लिप कर जाएगी, नीचे वाली चीज़ डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे न्यूमिनेटर बन जाएगी। तो 1 माइनस tan 45 डिग्री tan थीटा ओवर tan थीटा प्लस tan 45 इक्वल्स 2। तो ये 5 नंबर की बेटा जी आपके पास इक्वेशन थी, जिधर से हमने ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया और एंड पे उसको आंसर निकाल के दे दिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 देखें बेटा जी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन द डायग्राम शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है जो ट्राइंगल पी टी एन है। लोग ये वाली जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को गौर से देखो, एक्स वाई टी एन पी टी एन की बात हम कर रहे हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, यहाँ पर आप लिख दो कि जो ट्राइंगल है दैट इज पी टी एन। इस ट्राइंगल के अंदर जो इसका tan थीटा होता है पी टी एन, ये जो एंगल होता है ना याद रखो, ये वाला जो थीटा होता है, देखें हमने बचपन से पढ़ा हुआ है ग्रेडियंट का फार्मूला। जो ग्रेडियंट का फार्मूला होता है ना, जो ग्रेडियंट होता है वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, मतलब डेल्टा y ओवर डेल्टा x होता है। देखो डेल्टा पी एन, ये वाली जो ट्राइंगल है ना, इसको गौर से देखो, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बेसिक बचपन वाली बात, ओ लेवल की बात है। ग्रेडियंट का फार्मूला होता है राइज ओवर रन, या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो दिस इज बेटा जी राइज ओवर रन, ये आपका राइज है और ये आपका रन है। तो tan थीटा भी अगर हम लगाए ना सोकातुआ में, तो जो tan थीटा होता है आपका वो भी तो राइज परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो अगर गौर से देखा जाए तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, tan थीटा भी ग्रेडियंट है। तो आज के बाद याद कर लो कि भाई tan थीटा जो है ना वो ग्रेडियंट के इक्वल होगा। जब आप किसी ट्राइंगल का ग्रेडियंट निकालोगे तो ग्रेडियंट ही तो tan थीटा होता है, tan थीटा ही तो ग्रेडियंट होता है। अगर ग्रेडियंट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है तो tan थीटा इज आल्सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो गया। तो ट्राइंगल के अंदर आप ये लिख दो कि भाई अगर ग्रेडियंट, और A2 में ग्रेडियंट को बेटा डेरिवेटिव कहते हैं, मैथ्स के अंदर जो dy बाय डी एक्स होता है वही तो ग्रेडियंट होता है। तो अब ये 3 बातें याद कर लो कि dy बाय डी एक्स जो होगा वो tan थीटा होगा, और tan थीटा जो होगा वो ग्रेडियंट होगा। तो ये तीनों चीज़ें जहाँ पर लिखी हो आप कुछ भी लिख सकते हो। कहीं पर आप ग्रेडियंट निकालो, वो ग्रेडियंट को tan थीटा बोले, आप कहें बिल्कुल ठीक है। वो tan थीटा को dy बाय डी एक्स बोले, दैट इज आल्सो ओके, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इस ट्राइंगल में जो tan थीटा है, tan थीटा का मतलब है ये जो पी टी एन है ये डेरिवेटिव है। मैं इसको अगर dy ओवर डी एक्स बोल दूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर नो प्रॉब्लम, आप tan थीटा को ग्रेडियंट बोल सकते हो। यहाँ से आज ये बात पक्की याद कर लो कि tan थीटा इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज tan थीटा इज इक्वल टू ग्रेडियंट। तो ये तीनों बातें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं tan थीटा लगाता हूँ, लोग अगर मैं इसमें कहता हूँ कि tan जो है ना पी टी एन,
ये जो एंगल है ना PTN, इसके ऊपर अगर मैं tan थीटा लगाऊं तो सोकातुआ परपेंडिकुलर राइज PN है। अगर मैं एक्सप्रेशन में लिखना चाहूं तो राइज PN है और मेरा जो रन है वो TN है। तो मतलब मेरा जो आपके पास आ गया है जो PN की जो y की जो राइज जो है मेरा राइज मेरा y है और रन मेरा TN है और TN की वैल्यू उसने 2 बताई हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि y/2 इज माई tan थीटा, tan PTN। मेरा इस ट्राइंगल में जो tan है वो tan PTN है। तो tan थीटा को डेरिवेटिव तो मैं लिख सकता हूँ, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो अब आप बोल दो कि tan थीटा इज dy/dx। नाउ द न्यू नॉलेज फॉर यू, tan थीटा जो है वो तो dy/dx होता है और जो dx/dx होता है सर वो तो ग्रेडियंट होता है। तो अब आपने ये तीनों चीज़ें बराबर लिख देनी है। तो dy/dx इज इक्वल टू y/2। और यस, यही चीज़ हमने शो करके बतानी थी कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय x एंड y इज dy/dx। और ये सिर्फ एक नंबर की बात थी, सिर्फ वो ये जानना चाहता था क्या आप लोगों को पता है कि tan थीटा जो सोकातुआ में आप लोग यूज़ करते आए हो वही डेरिवेटिव होता है और वही आपका ग्रेडियंट होता है। तो आज के बाद अगर पता नहीं था, अब आपको पता होना चाहिए कि आप tan थीटा को डेरिवेटिव बेटा लिख सकते हो। तो नेक्स्ट थिंग, द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स 4,3 लाइज ऑन द कर्व, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। 5 मार्क का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। P3 में डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, P3 इंटीग्रेशन, ये मेन टॉपिक्स होते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने बनाई dy/dx इज इक्वल टू 1/2y। आप इसको लिख दो, दिस इज 1/2y। अब जब आप ये चीज़ लिख दो कि हमारे पास है, तो पहला स्टेप होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा सेपरेटिंग वेरिएबल्स। आपने क्या करना है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग। 2 काम इकट्ठे कर देने हैं कि आपने अपने एक्सप्रेशन का उसके वेरिएबल जो इक्वेशन आपके पास है dy/dx की, दैट इज इक्वल टू 1/2y, आपने उसको सेपरेट करना है और उसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर अब आपके पास बेटा जी वेरिएबल सेपरेट कर दो। तो जो y है, ये जो y है इसको dy के पास ले आओ। तो लेफ्ट साइड पे बेटा जी ये बन जाएगा 1/y और dy इज इक्वल टू dx के पास जो चीज़ है dx को राइट साइड पे ले जाओ। अब dx को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे 1/2 हो गया। यहाँ तक समझ आया अलीना फ़ारूक? मैंने क्या किया बेटा, वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने अपना वेरिएबल सेपरेट करना है और इंटीग्रेट कर देना है। तो पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अब दोनों साइडों के ऊपर बेटा मैं इंटीग्रेशन भी करूँगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, एक्चुअली ये इंटीग्रेशन की एक एप्लीकेशन है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन तो ख़त्म हो गई, dy/dx 1/2 इधर हमने ऊपर प्रूव किया था। अच्छा देखो, कुछ बच्चों को ये प्रूफ करना नहीं आएगा, तो जिन बच्चों को प्रूफ करना नहीं आएगा ना, उनको सिर्फ 1 मार्क लूज करवाना है। रोने नहीं बैठ जाना कि सर हमें तो प्रूफ करना ही नहीं आया। प्रूफ करना नहीं आया तो 1 मार्क जाएगा। अगले पार्ट के लिए ये वाली इक्वेशन उठा लो ना, अगले पार्ट में आपने ये वाली इक्वेशन उठा के इधर आ जाना है। ये 5 नंबर तो नहीं जा सकते ना। हमेशा वो बंदा डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला पार्ट इस तरह से वेयर्ड सा बनाता है और कहता है कि ये वाली इक्वेशन प्रूव करके दो। तो अगर आपने प्रूफ कर लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। देखना है 3 मिनट 2 मिनट तक हो रही है, ठीक है, नहीं तो अगले पार्ट में 5 नंबर में घुस जाओ कि ये मुझसे प्रूफ नहीं हुई, तो 1 नंबर लूज होएगा।
और अगर सर पकड़ के बैठ गया कि ये प्रूफ नहीं करूंगी तो मैं पार्ट बी नहीं कर सकती, दैट इज़ अ सिली मिस्टेक। वो नहीं करनी आपने। हमने अगर नहीं प्रूफ हुई तो एक नंबर समझे जाने दें। अब आपकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा दोनों साइड पे। 1/y की इंटीग्रेशन क्या होगी? देखो y का डेरिवेटिव, इधर कौन मिनाहल बताओ, 1/y की इंटीग्रेशन क्या है? ln y sir. ln y, क्योंकि शाबाश, बॉटम में अगर आपका डेरिवेटिव हो और ऊपर उसका जो है ना आपके पास डेरिवेटिव मौजूद हो तो डिनोमिनेटर ln, ये भी इंटीग्रेशन की एक टाइप है। तो लेफ्ट साइड पे बेटा जी हमारे पास ln y आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे आपके पास जो है ना 1/2 है। तो बेटा जी 1/2 की इंटीग्रेशन, 1/2 को बाहर फेंको, 1/2 तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, समझो अंदर 1 है और dx है। अब बताओ 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/2, 1 की इंटीग्रेशन एनीवन? x sir. शाबाश, तो ये x हो जाएगी, तो दिस इज योर dx। तो यहाँ पर आप देखोगे ln y, और आपके पास जो है ना यहाँ पर आपके पास 1/dx उड़ गया ना, मैंने dx तो नहीं लिखना क्योंकि जब इंटीग्रेशन होती है तो dx उड़ जाता है। तो बेटा जी यहाँ पर 1 आखिर में मैं क्या लगाऊंगा? c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप इक्वेशन को बना के 1 सेकंड के लिए पॉज करना है, रुक जाना है कि दिस इज ln y इक्वल्स 1/2x प्लस c हो गया बेटा जी। अब आपने c की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए 2 पॉइंट्स गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर। ये देखो बाउंड्रीज होती हैं, ये 2 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन के अंदर देता है 4,3। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यूज़ करेंगे। 4,3 को इधर आप लिखोगे, बाउंड्री वैल्यूज़ हैं कि जी 4,3 हमें गिवन है और 3y है। तो बेटा जी आपके पास ये आ जाएगा ln3, हमारे पास ln3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स की जगह पे बेटा आप लिखो 4 और प्लस जो है ना यहाँ पर c लिख दो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 + c, दैट इज इक्वल टू ln3। डिफरेंशियल इक्वेशन के वही कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मैंने बताए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज नहीं हुई। तो आपके पास बेटा जी जो c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो आएगी ln3 - 2। तो यहाँ पर बेटा जी आपके पास c बन चुका है, c को एज इट इज़ छोड़ दो इसकी शक्ल में। अब जो जिस इक्वेशन पे आपने पॉज लिया था ln y वाली, वो वाली वापस लिखो। तो ln y इज इक्वल टू 1/2x, और बेटा c की जगह पे बेटा आप क्या लिख दो? आप ln3 लिख दो। एक एक स्टेप बेटा नोट करते जाओ, ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी आप लोगों को। यहाँ पर देखें, इस इक्वेशन पे हमने बेटा पॉज लिया था, ln y इज इक्वल टू 1/2x प्लस c। अब जब c की वैल्यू चाहिए थी, एग्जामिनर ने ये पॉइंट खुद दे दिया 4,3, आपने y की जगह पे बेटा 3 पुट करना है और x की जगह पे आपने 4 पुट करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। लेकिन उसने क्या बोला है, इस इक्वेशन में किसको सब्जेक्ट बनाओ? वो बोलेगा या y को बनाओ या x को बनाओ। पढ़ो क्वेश्चन को, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो आपने उस इक्वेशन में से सिर्फ y को सब्जेक्ट बना लेना है और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम y को सब्जेक्ट बेटा जी कैसे बनाएं? अब जो ln वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे आप लेकर आ जाओ। लेफ्ट साइड पे बेटा जी देखें, बताएं ln y और माइनस जो है ना बेटा जी ये ln3 इज इक्वल टू 1/2x और -2। अलीना फरूक बेटा बताओ, जब ln में माइनस होता है तो इसका क्या मतलब होता है? डिवाइड। शाबाश, तो ln में जब माइनस होगा तो आपने टर्म्स को डिवाइड कर देना है, और ln में जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो ऐड हो जाते हैं। तो हम y के ये ln y/3 हो चुका है। तो दिस इज़ योर 1/2x और -2 राइट साइड पे है। तो अब आपने क्या करना है, मुझे इस ln को काटना है, मुझे इस ln से जान छुड़ानी है। तो राइट साइड पे जो कुछ है वो e की पावर बन जाएगा। तो ये सारा कुछ e की पावर आप लिख दो, दैट इज़ ये x/2 माइनस जो है ना 2, दैट इज़ y/जो है ना 3। तो मुझे y तो अब सब्जेक्ट बनाना बहुत आसान हो गया, मैं y के बिल्कुल पास हो गया।
तो अब आप लिख दोगे कि y इज इक्वल टू 3 टाइम्स e टू दी पावर x बाय 2 और माइनस जो है ना बेटा जी 2। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्योंकि उसने कहा था y को सब्जेक्ट बनाओ, हमने y को सब्जेक्ट बना दिया इन टर्म्स ऑफ x। तो इन टर्म्स ऑफ x, तो राइट साइड पे x भी मौजूद है। तो यहाँ तक समझ आ गई सबको? ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा जी सॉल्व हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टेप्स को आपने माइंड में बिठाना है। इसमें पहला पार्ट मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो कोई मसला नहीं है, आपने ट्राई करनी है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव कर लो। वो होती एक नंबर की है, तो मतलब आज के बाद ये अपने जहन से खौफ ख़त्म कर लो डिफरेंशियल इक्वेशन का। पार्ट 1 अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट वो लोग अटैच करते होते हैं, अगर वो याद हुआ तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। लेकिन इन केस आप नहीं प्रूव कर रहे तो एक नंबर है, जाने दें, एक नंबर से कौन सी क़यामत आनी है। आपने उसी एक्सप्रेशन को जो वो प्रूफ कराने का बोल रहा है उसको उठा के सेकंड पार्ट में पहुंच जाओ। असल कहानी तो सेकंड पार्ट से शुरू होती है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन तो सेकंड पार्ट से स्टार्ट होता है। तो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा जो है ना ली और उसके बाद जो है ना उसको सॉल्व किया। एक मिनट जस्ट। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट किया और फिर उसे जो है ना इंटीग्रेट कर दिया। तो दिस इज़ 1/y इनटू दैट थिंग। तो यहाँ से मैंने आगे मूव करते गए, ln आ गया बेटा, ln को हमने ख़त्म किया, ln के बाद जो है ना हमारे पास वो चीज़ आई और एंड पे मैंने y को सब्जेक्ट बना लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें बेटा जी हमने शो दैट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है आपकी, आइडेंटिटी, जो कि एएस लेवल में बच्चों की फेवरेट होती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो बेटा वो राइट हैंड साइड बन जाती है। तो अब लेट्स सी, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। आप जब जिस साइड को भी आप सॉल्व करोगे आप उसको लिखोगे। आपके पास है दिस इज 2 sin x माइनस sin 2x। इसमें जो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड बनाएगा उसी को ही मार्क्स मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेंगे। खुशफहमी में ना रहो कि आधी हम तो हल्की फुल्की कर लेंगे और हमें जो है ना मार्क्स दे देगा, उसने इतना अच्छा नहीं है वो। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है यू हैव टू प्रूव द एक्सप्रेशन। तो जो बच्चा एक्सप्रेशन को प्रूव करेगा वही जो है ना सॉल्व कर सकता है। 2 sin x का तो मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो 2 sin x को आप एज इट इज़ लिखो, दिस इज़ योर 2 sin x माइनस साइन 2 थीटा। साइन के पास 2 सेब थे, अलीना फारूक, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होएगी? एप्पल वाली। तो साइन 2 एप्पल, मतलब 2 साइन के पास 2 एप्पल थे, एक एप्पल उसने साइन को दिया, दूसरा कॉस को। गॉड वॉज हैप्पी विद द एक्ट, तो अल्लाह ने सबके उनके डबल कर दिए। तो साइन 2x का मतलब होता है एक्चुअली 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मतलब 2 साइन x कॉस x। तो मतलब ये जो 2x है ये 2 एप्पल हैं, तो साइन ने अपना एक एप्पल खुद रखा, एक कॉस को दिया, गॉड वॉज हैप्पी विद द एक्ट, तो दोनों के डबल हो गए। तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी हमेशा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होती है। और नीचे आपके पास जो आ चुका है ये है 1 माइनस कॉस 2x। तो जो 1 माइनस कॉस 2x है बेटा जी ये किस चीज़ के इक्वल होती है? अब आपने इसमें 1 माइनस कॉस 2x ये किसके इक्वल होगा? 1 माइनस कॉस 2x। कॉस 2x की आइडेंटिटीज आपके पास होती हैं, सोचो।
1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x की आइडेंटिटी को मिनाहल एहसन, कॉस 2x एक तो होता है हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस खाली बेटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2x इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको ये सारा कुछ साइन में चाहिए तो कॉस जो होता है ना ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जो यहाँ पर उसने लिखा है 1 माइनस 2, तो लेफ्ट साइड पे गौर से देखो, तो ये बन जाएगा बेटा जी आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज 2x। तो हमारे जो है ना आइडेंटिटी में नीचे 1 माइनस कॉज 2x आया हुआ है, तो इसकी जगह पे आप 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दें तो आपके पास जो है ना बेटा जी नीचे वाला मसला हल हो गया। अब 2 साइन एक्स आप इधर से कॉमन ले लो, ऊपर से आप 2 साइन एक्स कॉमन ले लो, टेक द कॉमन ऑफ 2 साइन एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स, ऊपर जो है ना ये बन जाएगा। अब नीचे 2 साइन स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, साइन स्क्वायर जो होता है ना वो 1 माइनस कॉज स्क्वायर से रिप्लेस किया जा सकता है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। अब जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, रिमेंबर दिस थिंग, ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 इस 2 को काट देगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ गया साइन एक्स, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है उसको a प्लस बी ए माइनस बी लिखा जा सकता है, तो यू कैन राइट 1 प्लस कॉज एक्स इंटू जो है ना बेटा जी 1 माइनस कॉज एक्स। तो ये पूरी ब्रैकेट ऊपर से नीचे कैंसल आउट हो जाएगी, तो राइट साइड पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन बन के हम स्टक हो गए वो है 1 प्लस कॉज एक्स के, तो साइन एक्स मेरे ख्याल में ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है, यही चीज़ आपकी राइट हैंड साइड पे लिखी हुई थी। लुक ये देखो साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स हमने प्रूफ करके देना था, 4 मार्क की आइडेंटिटी थी, शो दैट 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x ओवर 1 माइनस कॉज 2x इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स हो जाएगी। सो दैट इज योर आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पर समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अलीना? नहीं। गुड। अब इसी के अंदर खुश नहीं होना, 4 नंबर की इंटीग्रेशन भी आ गई है आपके पास। अब यहाँ पर देखो, हैंस शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग फाइंड दिस होल थिंग, जो आपने प्रूफ की है, और हमने जो ये वाली जो चीज़ है ना ये पीछे, हैंस का मतलब होता है पिछला पार्ट उठा लो, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे कि दी इंटीग्रेशन इज आपके पास है नीचे 1/3 पाई है, नीचे 1/3 पाई, ऊपर जो है ना बेटा जी आपके पास है 1/2 पाई है। तो अब ये वाली पूरी चीज़ हमने प्रूफ की है ऊपर किसके, साइन एक्स के। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया साइन एक्स ओवर जो है ना बेटा जी आपके पास आ चुका है, जो प्रूफ करना था वो था 1 प्लस कॉज एक्स और डी एक्स, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है बेटा जी साइन एक्स की। अब देखो नीचे वाला जो कॉज है, कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव साइन होता है, तो ये वो एल एन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, अपने मॉडुलस का साइन लगाओ, मॉडुलस का साइन लगाकर यहाँ पर राइट साइड पे 1/3 पाए कर दो, और यहाँ पर बेटा जी आप 1/2 जो है ना यहाँ पर ये पाए कर दो। कॉस का जो 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, बस ऊपर इधर सिर्फ नेगेटिव लगना है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो आपने जो है ना अपना नेगेटिव जो है ना उठा के यहाँ पर आप अंदर लिख दो कि सर ये तो नेगेटिव एल एन डिनोमिनेटर 1 प्लस जो है ना कॉस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें सोचना प्रैक्टिस के साथ होता है, जो बच्चा प्रैक्टिस में रहेगा वो इन चीज़ों, उसके माइंड में ये सारी चीज़ें उसी वक्त आएंगी। तो अब आपने बेटा इस माइनस को बाहर फेंक दो, माइनस को इसके बाहर फेंक दो, अब आपके मॉडुलस के अंदर जो चीज़ बच चुकी है बेटा जी वो है एल एन 1 प्लस जो है ना कॉस एक्स है बेटा जी, और यहाँ पर आप लिमिट लगा दो,
दिस इज़ 1/3 पाई, और ऊपर जो है ना आपके पास है 1/2 पाई। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने यहाँ पर ये चीज़ देखें, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें अपर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट पुट कर दो। अब आपके पास जो है ना 1 + cos x, अब x क्या है, x के लिए उसको आपको जो है ना हमारे पास इन द टर्म ऑफ एल एन के की शक्ल के अंदर आपने जो है ना देना है π/2। अब ये वाली अपर लिमिट इसमें पुट कर दो। अब आप कैसे पुट करोगे, ब्रैकेट लगा दो। अब आपने लिखना है कि ln 1 प्लस, अब जो है ना उसमें cos π/2, आप पहले अपर लिमिट पुट कर दो, cos π/2 हो जाएगा, फिर माइनस कर दो, माइनस का साइन यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर इसके अंदर आप लिखो कि जी ln ब्रैकेट में 1 और प्लस कॉज, और यहाँ पर आप लिख दो बेटा जी π/3, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। यूज़ योर कैलकुलेटर, तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी वो cos 90 0 होता है, तो ln 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस पूरी ब्रैकेट में से बाहर निकल आएगा ln 1, और ln 1 0 होता है यहाँ पर ln 1, और फिर आपके पास ln, दूसरी सूरत से cos π/3 को कैलकुलेटर से सॉल्व करो तो बेटा जी आपका कैलकुलेटर आपको यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर माइनस आपके पास है ये 0 हो गया, उसके बाद यहाँ पर आ जाना चाहिए आपके पास, 1 मिनट कैलकुलेटर यूज़ करो, ln 1 0 हो गया, ln cos π/3, तो ये आपके पास एक्चुअली π/3, तो ln जो है ना ये 3/2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ln 1 0 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आपके पास आ जाएगा ln 3/2। तो यही तो वो बोल रहा था, लुक यहाँ पर वो यही चीज़ तो दे रहा था, ln k की शक्ल में आपने आंसर बताना है। यू नीड टू डिस्क्राइब योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ln k, तो ln k की शक्ल में मैंने छोड़ दिया और ln 3/2 मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ आया अलीना बेटा? ये देखो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है या इंटीग्रेशन है बेटा, P3 इतनी आसान नहीं होती, P3 बहुत डेप्थ में एग्जामिनर लेके जाता है, इसीलिए बच्चे P3 मैथ से घबराते हैं। P3 प्रैक्टिस से आप लोगों का सीधा होगा, और यही वाला पेपर मैंने आप लोगों को सेंड भी कर दिया है। इन्हीं क्वेश्चंस की बेटा जी आपने खुद से करना है प्रैक्टिस, और जो क्वेश्चन भूल जाए इधर से आपने उसका आंसर वेरीफाई कर देना है। तो उसके बाद जो है ना कल तक ये वाला पेपर आप बेटा घर में कंप्लीट करो, और इसके प्रॉब्लम्स अगली क्लास में नया पेपर करने से पहले आप इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करो। तो आपका इंशाल्लाह जो है ना ये वाला डेली बेसिस पे हमारा एक पेपर कंप्लीट होता जाएगा। आपको मेन मुश्किल वाले मैं करवाता जाऊंगा, दूसरा आप घर में उसको ट्राई करो, फिर अगले दिन मुझे बताओ सर हमें इसमें प्रॉब्लम है, फिज़िकल क्लास में बताओ सर ये मसला है, वो मैं मसला सॉल्व करूँगा। टारगेट बना लो एक दिन में एक पेपर, तो एक महीने में 30 पेपर, तो 30 पेपर का मतलब है 6-7 सालों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर एक साल के आप मेन पेपर 3 रखो तो 10 साल की, अगर 6 पेपर रखो तो 5 साल की प्रैक्टिस। इंशाल्लाह रमज़ान में ही हमारा P3 100% फाइनलाइज हो जाएगा, बट इसके लिए आपको सीरियस बेसिस के ऊपर जो है ना एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है।